Good morning, students. Beta, as you know, we are already doing lesson number 1 of history, the rise of nationalism in Europe. This is quite a lengthy chapter. I know you might be wondered why sir is taking so long to finish the chapter, but अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ slowly, gradually ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਥ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲਵ ਫॉर ਵਨਸ ਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਪਾਏ, ਬਣ ਪਾਏ। ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪਾਇਰ। ਐਮਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਨੇ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪਾਇਰ। 1875 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ, 1875 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਰੋ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਲਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਬਾਲਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਲਕਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਲਕਨ ਏਰੀਆ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਕਨ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਾਲਕਨ ਏਰੀਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਨ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਲਕਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਿੰਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਬੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬਲਗੇਰੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਬਾਲਕਨ ਏਰੀਆ।
and all this Balkan area was under Ottoman Empire. You can see Ottoman Empire is written here. This side is Turkey, and all these areas shown in the green color, Serbia country, Romania, Bulgaria, these all were called the Balkan countries in the Europe. So यूरोप के साउथ के जोड़ा एरिया सीगा वो एरिया जोड़ा है बाल्कन एरिया कहा जाता है। और बाल्कन एरिया के जो लोग सीगे दोज पीपल हु वर लिविंग इन द बाल्कन एरिया दे वर कॉल्ड द स्लैब्स, उन्होंने स्लैब कहा जाता है। बाल्कन एरिया के अज के कुछ कंट्रीज जोड़े ने उसी देखते हैं किहड़े है जो अज के टाइम उत्थे कंट्रीज मौजूद ने। रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। सो ये जोड़े कंट्रीज ने ये सारे मिलके बाल्कन एरिया बनाते हैं। और इस जिन्ने भी बाल्कन एरिया के कंट्रीज सीगे दे वर अंडर द ऑटोमन एम्पायर एट दैट टाइम। ये सारे कंट्रीज ऑटोमन एम्पायर के अंडर सीगे। ऑटोमन एम्पायर सानू पता है कि ऑटोमन एम्पायर का जोड़ा किंग सी वो टर्की का सुल्तान सीगा। टर्की ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ नू अपने अंडर कर रखा सीगा और जिन्ना भी एरिया जिन्ने भी कंट्री टर्की के अंडर आते सी सब नू ऑटोमन एम्पायर का नाम दिता जाता सी। लेकिन ये जोड़े बाल्कन कंट्री सीगे ये तो यूरोप के सीगे। ऑटोमन एम्पायर का मालक टर्की एशिया का सीगा। सो इन्हां दा जिहड़ा है इन्हां दी हिस्टरी, इन्हां दी बैकग्राउंड, इन्हां दी नैशनैलिटी दा टर्की नाल कोई रिलेशन नहीं सी क्योंकि ये यूरोपियन सीगे, क्रिश्चन सीगे। सो इन्हां दे अंदर भी हौली हौली नैशनलिज्म की फीलिंग डिवेलप हुई इन्हां कंट्रीज़ दे विच, बाल्कन कंट्रीज़ के पीपल दे विच। और उन्होंने कोशिश की कि असी भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के वांग आज़ादी की लड़ाई लड़ीए और असी भी खुद आज़ाद हो जाए। असी ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रीस जिहड़ा है ये पहला ही 1832 के विच आज़ादी हासिल कर चुका सी, ऑटोमन एम्पायर तो बाहर हो चुका सी। बाकी कंट्रीज़ ने भी ये वाल देख के आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी कि असी भी टर्की तो आज़ाद होना। इस टाइम तक ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका सीगा। इस वजह के नाल भी बाल्कन एरिया के जो स्लैब पीपल सीगे उन्होंने काफ़ी इंस्पीरेशन मिली कि असी भी आज़ाद हो जाए। अक्सर बच्चे जोड़े ने स्लैब में स्लेव समझ जाते हैं। ये स्लैब है, स्लैब जोड़ा है ये वखरा वर्ड है, स्लेव होंदा गुलाम, स्लेव नहीं है स्लैब है क्योंकि ई नहीं पई हुई है, तुसीं खास ख्याल रखो। सो बाल्कन पीपल ने कोशिश की कि असी भी आज़ाद होना है। हौली हौली सारे ही कंट्रीज़ जोड़े सीगे रोमानिया, बल्गेरिया एक्सैट्रा जोड़े सीगे ये सारिਆਂ ने ही आज़ादी की जंग छेड़ दी और हौली हौली एक एक करके सारे ही ऑटोमन एम्पायर तो आज़ाद हो गए। आज़ाद होने तो बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इत्थे आई। ठीक है जी, इन्हां दी आज़ादी तो बाद एक सब तो बड़ी प्रॉब्लम इत्थे की आई, आफ्टर फ्रीडम दे बिकेम जेलस ऑफ ईच अदर। जदों ये कंट्रीज़ ऑटोमन एम्पायर तो मीनस टर्की तो इंडिपेंडेंस लै गए, आज़ाद हो गए, तो फिर इन्होंने आपस लड़ना शुरू कर दिता। फॉर एग्जाम्पल फिर रोमानिया बल्गेरिया नाल लड़ रहा होएगा, अल्बानिया मैसेडोनिया नाल लड़ रहा होएगा। इस तरह एक एग्जाम्पल दी है कि आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर दिता। फॉर एग्जाम्पल जिमें पाकिस्तान और इंडिया जोड़े सी इंडिपेंडेंस तो बाद आपस इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने भी इंडिपेंडेंस तो बाद टर्की तो आज़ाद हो गए तो आपस लड़ना शुरू कर दिता, एक दूजे तो जैलसी करनी शुरू कर दी और इन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके साढ़े अंडर आ जाए। सो ये जोड़े कंट्री सीगे बाल्कन कंट्रीज आपस से लड़ने शुरू हो गए, एक दूसरे देश के ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिता और इस चीज़ का फायदा यूरोपियन पावर्स ने उठाया। इंटरफेरेंस बाय यूरोपियन पावर्स, यूरोप दी जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां पावर्स सीगियां उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया, जिहड़ियां कि खुद पहला ही इंपीरियलिज्म तो इंस्पायर्ड सीगी, वो ऑलरेडी इन्हां दे उपर कब्जा करना चाहते सी। और यूरोपियन पावर्स जिवें कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इन्हां पावर्स ने अलग अलग कंट्रीज़ के उपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिता और उन्होंने आपस लड़ाना शुरू कर दिता। उन्होंने जोड़ा है वैपन्स प्रोवाइड करने, इकनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी कि तुसीं आपस च लड़ो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि एक कंट्री जोड़ा सीगा उहदे नाल रशिया मिल गया, दूजे कंट्री दे नाल इंग्लैंड मिल गया। सो इस तरह जोड़ा है इन्होंने उन्होंने जोड़ा है एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिता और उन्होंने वध तो वध आपस च लड़ाया, जिसका नतीजा की होया कि 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। वर्ल्ड वार 1 शुरू होने ਦੇ ਵਿੱਚ
बहुत बड़ा कारण जिहड़ा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बाल्कन सी। सो यूरोपियन पावर्स दे इत्थे आउण दे नाल की होया, इट लैड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इन द बाल्कन्स। बाल्कन जिहड़ा एरिया सीगा वो झगड़ियां का स्थान बन गया, उत्थे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बहुत सारिया लड़ाइयाँ होने लगियां, सारे बाल्कन कंट्रीज आपस में युद्ध कर रहे थे एक दूसरे के नाल। और इस वजह के नाल भी जिहड़ा है मन्निया जाता है कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई सी। वर्ल्ड वार 1 के बहुत सारे रीजन सी, लेकिन उन्होंने एक रीजन ये सीगा टेंशन इन द बाल्कन रीजन। Well students, now we have come to the conclusion of the chapter. So conclusion is that meaning of nationalism had different meanings for different people living in the different areas of the world. दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले जोड़े लोग सीगे उन्होंने नैशनलिज्म का मीनिंग जोड़ा है अपने अकॉर्डिंग, अपने हालातों के अकॉर्डिंग जोड़ा लेना शुरू कर दिता। फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि मीनिंग ऑफ नैशनलिज्म फॉर पीपल इन कॉलोनीज वाज डिफरेंट। यूरोपियन पावर्स ने एशिया और अफ्रीका के अपन कुछ कॉलोनीज बना रखिया और इन्होंने कॉलोनीज उन्होंने अपने अंडर कर रखा और उन्होंने एक्सप्लॉयट कर रहे थे। इन्होंने कॉलोनीज के लोगों भी जोड़ा है यूरोप के नैशनलिज्म तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो इन्होंने लोगों ने जर्मनी के नैशनलिज्म तो दे बारे पढ़िया या इटली के नैशनलिज्म बारे पढ़िया कि किमें उन्होंने स्ट्रगल किया और अपने नेशन बनाए, तो इन्होंने भी जोड़ा है उन्होंने तो काफ़ी कुछ नैशनलिज्म बारे सीखा, लेकिन इन्होंने नैशनलिज्म को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना। इन्होंने जो इन्हों की प्रॉब्लम सी उन्होंने दूर करने वास्ते नैशनलिज्म का कुछ डिफरेंट मीनिंग बनाया। इन्होंने वास्ते नैशनलिज्म की सीगा एंटी इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म सानू पता है कि होंदा साम्राज्यवाद। यूरोपियन पावर्स जिहड़ियां सी इंपीरियलिज्म का सिंबल सी, उन्होंने इन्हां कंट्रीज़ नूं एशियन ते अफ्रीकन कंट्रीज़ नूं अपनी कॉलोनीज़ बना रखा सीगा। सो इन्हां कॉलोनीज़ के लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई नूं ही नैशनलिज्म समझ लिया। सो कॉलोनीज़ के लोगों वास्ते नैशनलिज्म का मीनिंग सी एंटी इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करना, यूरोपियन पावर्स के नाल लड़ना और लड़ के अपने देश को आज़ाद करना। दिस वॉज द मीनिंग ऑफ नैशनलिज्म फॉर द पीपल ऑफ द कॉलोनीज इन एशिया एज वेल एज अफ्रीका। सो हर एक एरिया के लोगों ने नैशनलिज्म का जोड़ा डिफरेंट मीनिंग कट्टन की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल एक गल जी कॉमन सी नैशनलिज्म के हर जगह वो ये सी कि नैशनलिज्म का मीनिंग है कि हर एक जी नैशनैलिटी है, हर एक जी कौम है, उन्होंने राइट है कि वो अपना वक्रा डिस्टिंक्ट नेशन बनाए और उस नेशन की डेवलपमेंट करें। सो दैट कंक्लूड्स योर लेसन। थैंक्स वेरी मच।